Okay, let's say, let us start with the ninth question of problem set. What they have said, we'll read the question. Divide a 207 in three parts such that all parts in AP and product of the all the three parts in AP. That means, in short, the sum of the three parts is 207. And product of the two parts and product of the smaller parts, not the two, out of three, the two smaller parts will be 4623. Okay. Let us find you have to find all three parts. Okay. Solution 9. Let the three parts of 207, दोस्तों साथ ही है ना, of 207 which are AP, B, A minus D, A and A plus D. बराबर ना? A is the first term, बीच में का term, common difference D है तो एक पीछे जाओ, A minus D and A plus D. These are the three terms of the AP, okay, or three which are divided into three, or we can say there are three parts of 207 after division. Therefore, from first condition, the first condition is these three are the parts of 207. That means the sum of all these three will give you 207. A minus D plus A plus A plus D is 207. Therefore, A minus D plus A plus A plus D is 207. See, this gets cancelled out. So we get 3A, minus D plus D is 0. So A plus A plus A is 3A is 207. Therefore, what will be A? It will be 207 divided by 3. Therefore, A will be 3 6 are 18, 3 9s are 27. So we got the value of A. Now what they say, the product of two smaller terms. Now this is the largest part of the three, and these are the two smaller parts of the three parts. Therefore, from second condition, what we can say, A minus D into A is that, what is the product given to you? Product is 4623. Open karo, we get A square minus, before that we can substitute the value of A, 69 minus D into 69 is 4623. So 69 minus D is 4623 upon 69. So divide. मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. 4623 69. 6 is a 36, so 6 9 is 54. तो देखेंगे 69 into 6, 6 9 is a 54, 5, 6 is a 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 414. So 6 is a 414 minus 12 minus 4 is 8. 5 हो जाएगा, 5 minus 1 is 4, and that will be 0 minus 0. Now plus ये, okay, now go for
414 के और एक 69 ले लो, 69 7 बिकॉज 9 7 जो 63 आता है, 3 6 6 7 जो 42, 42 plus 6 48. Yes, so we are getting this is a perfect divisible, perfectly divide होता है 1 जा 67 जा. So I'll erase this now. इसको इरेज करते हैं. क्या लिखते हैं? सो हमें डिफाइन करना है (69 minus d equal to 67). डी उस साइड लेके जाओ. 69 minus 67 equal to d. Therefore d equal to 2. तो d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई. Now find all the three parts. First part क्या है? a minus d. So it will be 69 minus 2, 67. Then a is 69 and a plus d क्या है? 69 plus 2. So it will be 71. So उन्होंने क्या पूछा अपने को? Divide to the number such that okay. Therefore the three parts. Therefore the three parts in which 207 is divided. 207 such that all parts such that all parts are in AP. Okay, the three parts in which 207 is divided such that all parts are in AP are 67, 69 and 71. So ninth question. चलो क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, प्रॉब्लम सेट 3 का. There are 37 terms in the AP. The sum of the three terms placed exactly at the middle, जो तीन terms middle में है, उसका sum है 225 and the sum of the last three terms is 429. You write the entire AP, पूरी AP लिखो. इसको भी हम बड़ा क्वेश्चन है तो इसको we'll divide into three parts. We'll divide our whiteboard into three parts because these questions are quite lengthy. इनकी वर्किंग बहुत लंबी होती है. So solution 10. Here the total terms of AP equal to n is 37. Okay. Therefore middle term of AP will be n plus 1 upon 2. This will be 37 plus 1 upon 2. This will be 37 plus 1 upon 2. N is 37. So 37 plus 1 upon 2, what will get? 38 upon 2 equal to 19th term. Remember, if you have an even number, n number even होता तो हम n upon 2 लेते, मिडिल टर्म मिल जाता. क्योंकि ये ऑड नंबर है और हमें मिडिल टर्म चाहिए, इसलिए हमने n plus 1 upon 2 लिया. क्लियर? परफेक्ट समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं. तो ये क्यों लिया आपको समझ में आ गया. ये n plus 1 upon 2 क्यों लिया, n upon 2 क्यों नहीं लिया. n upon 2 लेते अगर वो n इवन होता. n क्या है? और 37 is ऑड नंबर. सो
मिडिल टर्म के लिए हमने लिया n प्लस 1/2। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे मिडिल टर्म निकालने के लिए। ओके, चलो आते हैं मिडिल टर्म तो अपना निकल गया, लेकिन उन्होंने एक मिडिल टर्म नहीं बोला है, जैसे 3 मिडिल टर्म्स। तो 19 तुमने मिडिल टर्म निकाल दिया, तो 3 मिडिल टर्म कौन से होंगे? 19 के अगला वन, प्रीसीडिंग वन एंड सक्सीडिंग वन, तो दोनों हमें निकालने हैं। तो 18 का पहले 19 का पहले आता है 18, बाद में आता है 20। सो 18, 19, 20 आर द 3 टर्म्स। Therefore, the three middle terms of AP are 18th, 19th and 20th terms. ये हो गया। So as per the given, as per the first condition, पहली कंडीशन क्या दी है उन्होंने? Sum of these terms T18 plus T19 plus T20 is 225. T18 plus T19 plus T20 is 225. 225. We use formula Tn equal to A plus n minus 1 into D। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, तो लेंदी हो जाएगा तो इसे छोटा लिखते हैं। तो ये T18 क्या होगा? A plus 18 minus 1D plus T19 क्या होगा? A plus 19 minus 1D। T20 क्या होगा? A plus 20 minus 1D equal to 225. Therefore, A plus A will be give you 3A plus ये आएगा 17D, 18 minus 1 17D plus 19 minus 1 18D plus 20 minus 1 19D is 225. Therefore, 3A plus याद करो 9 plus 8 17, 17 plus 7 24, तो 4 लिखो, 2 कैरी, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3 and 254D is 225। तो डिवाइड होता है 3 से, तो बोलो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। सो हमें क्या मिलता है? A plus 3 1s are 3, 3 8s are 24 equal to 3 7s are 21, 3 5s are 15. So this is your first simultaneous equation. Now we go for the second condition. As per the second condition, what they say, second condition में उन्होंने क्या बोला है? लास्ट के जो 3 टर्म्स हैं, लास्ट के जो 3 टर्म्स है, लास्ट के 3 टर्म्स कौन से होंगे? देखो 37 इज द लास्ट टर्म। अगर 37 लास्ट टर्म है तो 35 36 37 ये लास्ट 3 टर्म्स होंगे। एज पर द गिवन कंडीशन T35 प्लस T36 प्लस T37 इज 429। तो इसको भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके करना है। सो A प्लस 35 माइनस 1D प्लस A प्लस 36 माइनस 1D प्लस A प्लस 37 माइनस 1D इक्वल टू 429। तो ये क्या होगा? A प्लस A वी हैव 3A प्लस 34D plus 35D plus 36D is 429. Therefore,
3a प्लस, तीनों ऐड करो d, 6 plus 5 11, okay, 11 plus 4 15, 5 1 carry, ये 3 3 3 तीन बार है, so 3 3 is 9 plus 1 10, so actually it is 1 not, 5d is 429, again this is divisible by 3, so देखो dividing both sides by 3, क्या मिलेगा अपने को, we get a plus 3 3s are 9, 1 carry, 3 5s are 15, d equal to ये आएगा 3 1s are 3, 1 carry, 3 4s are 12, 3 3s are 9, so this is your second equation. अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, फर्स्ट इक्वेशन में a है, सेकेंड इक्वेशन में भी है, सब्ट्रैक्ट करो, therefore subtracting equation 2 from 1, so equation 1 लिखो, a plus 18d equal to 75, और ये लिखो a plus 35d equal to 143, साइन चेंज करो, एक लाइन छोड़ो, साइन माइनस, साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, अभी इसको भूल जाना, ये माइनस को, a माइनस a कैंसिल हो गया, 18 माइनस 35 इज माइनस 17d, और ये 143 माइनस 75, सो 143 माइनस 75 करो, 13 minus 5 is 8, 3, so 13 minus 7 is 6. So you get, of course, 143 is bigger and 143 का साइन है माइनस, so ये होता है minus 68. So divide करो, therefore we get d is equal to minus 68 upon minus 17, so d value is 4. 17 4s are 68. Now put d value in first equation. Put d equal to 4 in equation 1. हमें क्या मिलता है, a plus 18 into 4 equal to 75. Therefore a plus 18 4s are 72. 18 4s are 72, तो we get a plus 72 equal to 75. 72 को उस साइड लेके जाओ, therefore we get a equal to 75 minus 72, so we get a equal to 3. अभी now we have got a and d value, तो हम ap तो निकाल पाएंगे, लेकिन ap के सब टर्म आएंगे, लेकिन nth टर्म हमें मालूम नहीं है, तो nth टर्म निकालते हैं पहले, लास्ट टर्म क्या होगा, नाम n is 37, so 10 37 टर्म कौन सा होगा, a plus 37 minus 1 into d, तो therefore 37 टर्म, therefore t 37 कौन सा टर्म है, a is 3 plus 36 into what is d value 4, therefore t 37 equal to 3 plus 4 6 are 24, 12 144, so for t 37 is 147, therefore अभी AP निकालो ना, a equal to t1 is 3, therefore t2 equal to t1 plus d, that is 3 plus 4 equal to 7, therefore t3 equal to t2 plus d, that is 7 plus 4 equal to 11, and so on. The t4 equal to t3 plus d equal to 11 plus 4 equal to 15, dot dot dot, tn is 147. Therefore answer लिखो, therefore
the required AP is, required AP क्या है? The required AP is 3, 7, 11, 15, dot 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 147. ये हो गया आपका आंसर. So with that we completed question number 10. अभी हमें जाना है question number 11 को. Okay? Now let us go for question number 11 of problem set 3. What they ask you is, they say if first term of AP is A, second term of AP is B, third term of AP is C, then we have to show that sum of the sequences A plus B, that should be in bracket, then again bracket start, B plus C minus 2A, bracket complete, the whole upon 2 in bracket B minus A. ये हमें प्रूव करना है. So चलो स्टार्ट करते हैं. In the given AP, T1 equal to A, T2 equal to B, T3 equal to C. They are the three terms. Therefore, common difference D will be T2 minus T1. बस एक ही कोई निकालो कॉमन, क्योंकि AP दिया है तो कॉमन डिफरेंस कॉमन ही होगा. B minus A. So D is equal to B minus A. Okay? Now Tn निकालो. Nth term will, you know, A n minus 1 into D है. Therefore Tn will be A plus n minus 1 into B minus A. Okay? Now, sorry, उन्होंने दिया है, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, प्लीज ध्यान से देखो. They are given us that the first term of AP is A, second term is B and nth term is C. Tn is C दिया हुआ है, ये तो हम लोग आगे नहीं बताएंगे. Tn equal to C. तो ये आ गया therefore C equal to A plus n minus 1 into bracket B minus A. अब A को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ. Therefore C minus A equal to n minus 1 into B minus A. Now what you do is, ये जो B minus A को डिवाइड करो. Therefore we can say n minus 1 equal to C minus A upon B minus A. वन को साइड लेके जाओ. Therefore n is equal to C minus A upon B minus A plus 1. So n क्या होगा? C minus A plus B minus A the whole upon B minus A. So n की वैल्यू होगी C plus B minus 2A upon B minus A. इसको ध्यान पे रखो. n terms are, number of terms are B plus C या C plus B. B plus C करके तो आ जाएगा B C, चलेगा. ये भी चलेगा. C plus B minus 2A upon B minus A. Now, sum of the terms of AP क्या है? Sn. Sum of the terms of AP is Sn. Now you know very well. Therefore, what is Sn? अगर हमें first term मालूम है, we know the first term and we know the last term. Okay, then we can use that formula. So n upon 2 T1 plus Tn. Therefore Sn क्या होगा? अब ये लिखना बहुत जरूरी है.
n की वैल्यू ये है c प्लस b c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a द होल अपॉन 2, ये इक्वल टू यहां है T1 is A, so therefore Sn क्या होगा, ये B माइनस से नीचे लेके आओ, so it is C plus B minus 2A upon 2B minus A into bracket A plus C, यहां तक लिख लो। अभी हमें सॉल्व करना है इसको। Therefore Sn क्या होगा, a प्लस सी, ये b प्लस सी माइनस 2a करो, अरेंज करो इसको, अपॉन 2b माइनस a, और ये है आपको, दिस इज व्हाट दे आस्क यू टू फाइंड आउट, हेंस प्रूव्ड। अब हम 12th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 12, इसको इरेज करते हैं। यह आसान था, दिस वाज इजी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 सा लेंदी है, चलेगा, इसमें हो जाएगा शायद, टू गेट इट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, इफ the sum of the first p terms of an AP, पहले p terms है, n terms होते हैं सर, n हमने किया था, n terms, p terms, q terms, चलेगा, any terms, okay. If the sum of the first p terms of AP is equal to sum of the q terms, मतलब sp, sn लिखते हैं ना, sn, so sp equal to sq में दिया हुआ है, then show that सम ऑफ इट्स फर्स्ट, तो हमें बताना है द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स जो है इज 0, सो फर्स्ट p प्लस सम ऑफ, मतलब एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 बताना है, एस पी इक्वल टू एस क्यू होगा, तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं, नो इश्यू। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन 12, उन्होंने क्या कहा है, लेट द फर्स्ट टर्म, देखो वी डोंट नो, दे आर गिवन अ सीक्वेंस, तो हमें कुछ तो हमें फॉर्मूला लेना है, तो फॉर्मूले में ए और डी हमें लेना पड़ेगा, तो उसको हम मेंशन करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड द कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी, ओके, लेट द first term of first term and common difference, first term and common difference of given AP, B, A and D respectively, ये हमने मेंशन कर लिया। अब हमें we know SP equal to SQ, this is given, हमें मालूम क्यों है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला, यूजिंग formula. What's the formula? Sn equal to n upon 2a plus n minus 1 to d. अब ये दोनों के लिए हमें इस्तेमाल करना है, sp के लिए भी और sq के लिए भी। तो यहाँ n है ना, n की जगह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में p डालेंगे
और राइट हैंड साइड में n की जगह q डालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. देयरफॉर ये p है तो यहां क्या होगा, p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू ये हो गया q अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट कंप्लीट. इतना समझा. अब ये 2 को निकाल दो. सो मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग नहीं क्योंकि पहले से डिवाइडिंग है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 निकल जाएगा. तो बचा क्या, p. तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1d इक्वल टू 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1d. मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. अब ये सब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आई ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. क्या होगा ये, therefore 2ap, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या, तो माइनस 2aq प्लस p इंटू p माइनस 1d माइनस इस साइड लेके आओ तो q इंटू q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. ये सब क्योंकि आई ब्रॉट ऑल दिस राइट हैंड साइड टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड, उसकी वैल्यू बन जाती है 0. अब हमें इन दोनों में से, ये दो में से कॉमन निकालना है. हमें 2a कॉमन निकला, मिला क्या, p माइनस q प्लस. ओके, इसको नाउ वी हैव टू व्हाट, हमें क्या ओपन करना पड़ेगा. ये इसमें से d कॉमन निकालो पहले. देखो d यहाँ है, d यहाँ है, तो ये बाद में ओपन करो. p इंटू p माइनस 1 माइनस q इंटू q माइनस 1 और d बाहर निकालो. ओके, अब हमें वापस इसको मल्टीप्लाई करना है. ये जो टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करना है. सो 2a p माइनस q प्लस ये क्या होगा, p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q. देखो p इंटू p स्क्वायर, p इंटू माइनस 1 इज माइनस p, माइनस q इंटू q इज माइनस q स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस q इंटू 1, q इंटू 1, q इंटू d इक्वल 0. अब ये क्या होता है, 2a p माइनस q प्लस, इसको अरेंज करो, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस, देखो माइनस p प्लस q d इक्वल टू 0. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज सी केयरफुली. therefore 2a p माइनस q प्लस, देखो मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो क्या होगा p माइनस q और ये होगा p प्लस q माइनस, ये तो मैंने दिस टर्म ये कर दिया, ये माइनस p माइनस 1 बाहर निकाला तो अंदर बचता है p माइनस q इंटू d इक्वल टू 0. अब ये टर्म में p माइनस q कॉमन है तो देखो 2a, therefore 2a p माइनस q प्लस p माइनस q बाहर निकाला तो अंदर क्या बचता है, p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल 0. ओके, ध्यान से देखो. अब इसमें से मैं p माइनस q बाहर निकाल रहा हूं, therefore p माइनस q बाहर निकालो. ये दोनों टर्म्स देखो, ये और ये, तो अंदर क्या बचा, इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. अब इसको ध्यान से देखो, उन्होंने शायद हमें कुछ दिया है. हाँ, प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 देखो. उन्हें लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है p एंड q आर नॉट इक्वल, p इज नॉट इक्वल टू q. therefore since p is not equal to q given,
therefore p minus q not equal to 0. p minus q not equal to 0. therefore dividing, यह हम इक्वेशन 1 लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय p माइनस q, क्या होगा ये 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0. ये आ गया आपको. बट अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन को. ये हमें हाईलाइट करना है. अभी हमें जाना है, हमको उन्होंने क्या बोला है, यू हैव टू शो सम ऑफ p plus q. Sum of p plus q is 0 ना. Sum of p plus q term is 0. s plus s p plus q देखो हमें फाइंड करना है ना. s p plus q क्या होगा, तो वो होगा p plus q अपॉन 2 होल ब्रैकेट 2a प्लस p plus q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. सॉरी ये मत करो, ये लिखा बट 2a बट दिस इज इक्वल टू 0 ना. फ्रॉम इक्वेशन 2 we get therefore s p plus q equal to p plus q upon 2 into 0. देखो from equation 2, therefore s p plus q equal to 0. This is what we had to prove और हमने इसको प्रूव कर दिया. therefore answer sum of, क्या मुझे पूछा, sum of its first p plus q terms. therefore sum of its first p plus q terms is 0. Hence we completed question number 12. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 13. सॉल्यूशन 13 और प्रॉब्लम सेट 3. क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको. क्या दिया है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, मतलब m इंटू tm, m टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन, m मल्टीप्लाई बाय mth टर्म मतलब tm, ओके, ऑफ एन ap इज इक्वल टू nth टाइम द nth टर्म, मतलब m इंटू tm इक्वल टू n इंटू tm. ये उन्होंने दिया हुआ है. ओके, नो व्हाट, देन शो दैट, देन हमें बताना है m प्लस nth टर्म इज 0. जो हमें अभी हमने किया था ना, s प्लस q इस टाइप का ही है, थोड़ा डिफरेंट है बस. वो s इन टर्म्स ऑफ सम था, ये इन टर्म्स है. तो हमें स्टार्ट करना है. लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of given AP be A and D respectively. Now MTN equal to NTN. This is given to you. Okay. Now we are going to use the formula. आप लोग फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हो. यूजिंग फॉर्मूला, आप लोग अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हो. टीएन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी. तो यही हमें इस्तेमाल करना है
और टी एम का फॉर्मूला क्या होगा, a plus a minus 1 into d. So we are going to use this here. Therefore m into a plus a minus 1 d equal to n into a plus n minus 1 d. हो गया. Now what to do? Open the bracket. So we get am plus m into m minus 1d equal to an plus n into bracket n minus 1d. अब ये जो whatever you have found out, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं. इससे हमने वो एस पी प्लस क्यू में किया था लेफ्ट हैंड साइड. सो मैंने ए एम के साथ में लेता हूं माइनस ए एन प्लस एम एम माइनस 1d माइनस एन माइनस 1d इक्वल 0. ओके, ये समझ में आया? जस्ट लाइक व्हाट वी डिड पहले किया था. अब यहां मैं कॉमन निकालता हूं ए एम माइनस एन. यहां कॉमन क्या निकलता है देखो, डी. सो ब्रैकेट के अंदर आएगा एम माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी इक्वल टू 0. कॉमन निकाल दिया डी. सो ए एन माइनस एन एज इट इज रखो. अभी इसको सॉल्व करो. ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन, जैसे हमने वो किया था ना टी स्क्वायर, वो सब वैसे 12th क्वेश्चन में. सो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन ब्रैकेट में डी. अब हमें ये दो टर्म को, ये जो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक साथ लेना है. Therefore a n minus 1 n minus n प्लस ये क्या होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी इक्वल 0. सिर्फ मैं अरेंज किए, आई ओनली अरेंज द टर्म. मैंने कौन से टर्म अरेंज किए देखो, मैंने n को आगे लिया और माइनस n को पीछे लिया और कुछ नहीं. Therefore a m minus n प्लस, अब ये क्या हो जाता है देखो, ये होता है m माइनस एन m प्लस एन. दिस फॉर्मूला, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर विल बी एन माइनस एन एम प्लस एन. ये दोनों में कॉमन माइनस बाहर निकालता हूं तो इनसाइड द ब्रैकेट मिलता है मुझे m माइनस एन और ये ब्रैकेट के बाहर d इक्वल टू 0. अब इनमें m माइनस एन कॉमन है देखो, a m माइनस एन प्लस, अब मैं m माइनस एन को बाहर निकालता हूं, अंदर मिलता है m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0. ओके, अब यहां क्या मिल रहा है हमें, m माइनस एन कॉमन मिल रहा है. तो m माइनस एन कॉमन निकालो. जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 12 में p माइनस क्यू कॉमन मिला था, सेम वे. इनसाइड ब्रैकेट क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट, अच्छा, इंटू डी ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 0. यहां तक तो हम लोग पहुंच गए. नाउ उन्होंने कुछ दिया है, since m minus n is not equal to 0, dividing both sides by m minus n. So m minus n से हमें दोनों साइड को डिवाइड करना है. जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, what you will get, हमें मिलता है ये m minus 1 चला जाएगा. So what will get this entire bracket? Therefore we get a plus m plus n minus 1 into d equal to 0. ये हमें मिलता है. इसको इक्वेशन 1 कहते हैं. ये याद रखो. ओके, नाउ m plus nth टर्म क्या है, t m प्लस n. तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो. Therefore t m प्लस n
इक्वल टू ए प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका n प्लस 1 टर्म फ्रॉम इक्वेशन 1। therefore tm plus 1 tm plus n इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। therefore m plus nth term of AP is 0। 13th क्वेश्चन completed। अब हम इसको इरेज करते हैं और 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो 12 और 13 ऑलमोस्ट सेम था, वो सम था और ये nth टर्म था। वो एस सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म बताना है 0, यहाँ m प्लस nth टर्म बताना था 0। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज एन एक्टिविटी, वो एक्टिविटी टाइप ही है, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आप लोग बॉक्स में डाल दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन 14। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट विद नंबर ऑफ इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ना सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर उन्होंने क्या कहा, देखो एस आई फॉर फर्स्ट ईयर, SI for first year they are given us 100 into 10। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने वो एक्टिविटी देख ली यार, चालू हो गया, लेकिन लेट्स सी द क्वेश्चन। सी 1000 इज इन्वेस्टेड, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, इज इन, अच्छा प्रिंसिपल लिखते तो अच्छा होता, अच्छा होता, हम लिखते तो अच्छा होता, सिंपल इंटरेस्ट लिख लिया हमने। P इज इक्वल टू ₹1000, R इज इक्वल टू 10% है निकल से 10% है, दो टर्म 10% और एनम होगा। ओके, check at the end of every year if the total interest amount is in AP. If this is in AP, then find interest amount after 20 years. Okay, for the अच्छा S 20 ईयर्स के बाद हमें चाहिए, मतलब अब देखो T20 निकालना है, 20th ईयर में उसका कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। SI फॉर द फर्स्ट ईयर, तो P इज 1000। मैं थोड़ा जगह छोड़ता हूं, तो यहां SI for first year, P is 1000, N is 1, R is 10 upon 100। तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया ₹100। Then simple interest for second year equal to 1000 into 2 into 10 upon 1000। आपका 0 0 क्या लगे, this will be ₹200। Simple interest for third year equal to 1000 into 3 into 10% upon 100। So it will be ₹300। Thus, SI for 4th, 5th, 6th years will be
400, 500, 600 respectively. ओके, सो हमें ऐसे आगे बढ़ते जाना है. सो कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस बहुत आसान है. डी, ये देखो हर एक का 100 है. 200 माइनस दैट इज 200 माइनस 100 इज नथिंग बट 100. सो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया. कॉमन डिफरेंस इज 100. सो यू हैव टू फाइंड अमाउंट. अच्छा, ये ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. therefore हम लोग एपी लेते हैं. एपी लिखा तो अच्छा रहेगा, दैट्स मच बेटर. therefore the required AP, the required AP क्या है? 100, 200, 300, 400 डॉट डॉट डॉट. हमें 20 ईयर्स, देखो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हमें 20th ईयर का फाइंड करना है. ओके, therefore कॉमन डिफरेंस फाइंड. अच्छा, therefore A क्या होगा? A इक्वल टू T1, दैट इज 100. ओके, कॉमन डिफरेंस minus 100 is 100. So D is also common difference is 100. First term is 100. Common difference also is 100. अब हम जाते हैं अमाउंट. क्या पूछा उन्होंने? Amount of simple interest of amount of SI after 20 years will be T20. We know Tn equal to A plus n minus 1 into D. Therefore T20 will be A कितना है? 100 plus 20 minus 1, D कितना है? 100. So this will be 100 plus 1900. Therefore T20 will be 2000. Answer. क्या आंसर है? The amount of simple interest. The amount of simple interest. क्या पूछा उन्होंने? Find the interest amount after 20 years. Therefore, amount of simple interest after 20 years is rupees 2000. With that, we complete problem set.